हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ सर। आज आपको इस लेक्चर में क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, जो एग्जांपल 2 है आपकी क्लास 10 रियल नंबर से पेज नंबर 7 पे आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन ये कहता है, ये क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये कहता है, क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो देखिए कि लेट a be a positive integer and the divisor b be 2. Therefore, according to Euclid's division lemma, there exist unique integers q and r such that a is equal to 2q plus r, and we know the remainder when divisor is 2, then the remainder will be either 0 or 1. So there are only two possibilities we already have discussed. So there are only two possibilities. Therefore, only two possibilities arise. Number one, if remainder is 0, and number two, if remainder is 1. So here we can write a is equal to bq plus r. A is positive integer. In place of b, we already have taken 2. Q, remainder is 0. So we can write a is 2q. Similarly, this side, a is equal to bq plus r. B means divisor, we already have taken 2, 2q plus 1. We know that when any integer is multiplied by 2, it is an even number. When means 2 into any integer that is even number. Please note, and even number plus odd number means sum of an even number and odd number is always an odd number. So this is even number, this is even number plus 1, that is odd number, so that is odd number, and hence proved. We have to prove that even number is of the form 2q and odd number is of the form 2q plus 1, and this is proved. We can say which is even is 2q, and which is odd, hence proved. All these theorems means questions are based on Euclid's theorems. And now this is your next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपका एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 3 है, जो पेज नंबर 7 पे है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, हियर वी हैव टू मेंशन, दिस इज व्हाट, ओड की बात करेंगे यहाँ पे, is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. So same we have to take let
A be a positive integer and the divisor B be taken 4. Therefore, according to Euclid division lemma, we can write A is equal to 4Q plus R. We know when the divisor is 4, so possible remainders are 0, 1, 2, and 3 only. Possible remainders are either 0 or 1 or 2 or 3. So there the 4 possibilities arises. Therefore, only 4 possibilities arise. Number 1, when the remainder is 0. Number 2, when the remainder is when if remainder is 0. Number 2, if remainder is 1. Third possibility is if remainder is 2. And the fourth possibility is if remainder is 3, because only 0, 1, 2 and 3, only these 4 remainders are there if a divisor is 4. So according to each remainder we have one possibilities. So we can write according to Euclid division lemma, we can write A is equal to 4Q plus R. In place of R we can write 0. So we can write A is equal to 4Q. We can take 2 as common. We can write 2Q. When any number is multiplied by 2 into any integer, which is, we can say, which is even. For the second possibility, we write A is equal to 4Q in place of remainder. We know that 4Q is even plus 1. Even plus 1 means that which is 4. For the third possibility, here we can take A is equal to 4Q plus 2. 2 can be taken as common. 2Q plus 1, this is some integer. 2Q is integer. Integer multiplied by 2 is again an integer. And integer plus integer, 1 is integer, that is also integer. So 2 is outside, so we can say that which is even. Again, in the fourth case, R is 3, so we can write 4Q plus 3. We know 4Q is even, 3 is odd, so we can say that which is odd. So only we can say only means this is odd or this is odd. Therefore, 4Q plus 1 or this is 4Q plus 3 are or positive integers, and this is true. Right? So this is the proof of the this example. Many times this question has come in board examination, and we are proving this using Euclid's division lemma. And now this is question number. The important example. This is extra example actually, but very important. When we read the questions ask us that show that any positive integer, here it is not odd or even. यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि integer odd है कि even है, केवल ये पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसकी फॉर्म होगी 3Q मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2. देखिए इसको भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से करेंगे. यहाँ पे कहेंगे कि लेट A be a positive integer and B means divisor is 3.
Therefore, by Euclid's division lemma, we can say A is equal to 3q plus r. We are possible remainders because the divisor is 3, so possible remainders can be 0, can be 1, or can be 2. These are unique numbers because according to definition of Euclid division lemma, ये क्वेश्चन पूछा था, ये Euclid division lemma की definition है let A and B are two positive integers, then there exist unique integers Q and R. Unique integer है means remainder 0, 1 और 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. तो यहाँ ऐसे कहेंगे therefore only 3 possibilities arise. Possibilities कैसे होती है according to the remainder. First possibility is if remainder is 0. Second possibility is if remainder is 1. And the third possibility if remainder is 2. Okay. Then हम रखेंगे we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So A is equal to 3q plus r, because since r is 0, so in place of A we can write 3q plus 0. A is equal to 3q. Number 1. अगर हम रिमाइंडर 1 लेंगे तो हम देखेंगे कि इट इज 3q plus remainder is 1. This is second possibilities. And third is A is equal to 3q plus 2. देखिए तीन ही पॉसिबिलिटीज पूछी है, इधर ये या तो ये होगा 3q या 3q plus 1 और ये 3q plus 2. यहाँ पे A क्या चीज है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. वी ऑलरेडी हैव टेकन व्हाट इज A हियर. A is any positive integer. So हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं 3q plus 1 और 3q plus 2. ये q क्या चीज है, q is some integer and I think hence proved. देखिए यही क्वेश्चन है, पूछा था कि या तो 3q फॉर्म लिखेंगे या इधर 3q plus 1 और 3q plus 2. So we can say hence proved. और ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी एग्जाम्पल है. और क्वेश्चन ये पूछता है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ओड इंटीजर है कि इवन इंटीजर, केवल ये पूछा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इस फॉर्म में होगा 5q plus 1, 5q plus 2 एंड 5q plus 3 और 5q plus 4. राइट. तो कैसे करेंगे, देखिए वही लेट A be a positive integer and the divisor we can take here divisor में 5 लेना चाहिए 5. Therefore as per Euclid's division lemma we can write dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. रिमाइंडर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर आप ये डिवाइजर 5 लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कैन बी 0, रिमाइंडर कैन बी 1, रिमाइंडर कैन बी 2, रिमाइंडर कैन बी 3 और रिमाइंडर कैन बी 4. सो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास 5 होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4. सो आर कैन बी रिटन एज 0, 1, 2, 3 और 4. सो वी कैन से देयरफॉर only 5 possibilities arise. Number 1, if remainder is 0. Number 2, if remainder is 1. Third possibility, if remainder is 2. Fourth possibility, if remainder is 3. And fifth possibility,
इफ रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी ही बनती है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ओनली, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 5 है तो पॉसिबिलिटीज भी 5 ही होंगी। रिमाइंडर ये क्यू और आर, ये जो हमारा ये जो कॉसेंट और रिमाइंडर होता है यूनिक होता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में मेंशन है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। यूनिक, क्यू भी इंटीजर है, आर भी इंटीजर है, लेकिन यूनिक है। यूनिक का मतलब है कि रिमाइंडर इनके एक्सेप्ट इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। केवल हमारे पास 5 रिमाइंडर्स होंगे और हर एक रिमाइंडर का एक केस बनता है। तो देखिए हमारे पास है, ये होगा, हम लिखेंगे 5q प्लस आर, और यहाँ पे आर है हमारे पास 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज ए इज इक्वल टू, दैट इज a is equal to yes, we can write here a is equal to 5q. In second case we can write a is equal to 5q plus 1 because the remainder is 1. थर्ड में हम लिख सकते हैं a is equal to 5q plus 2, और फोर्थ में लिखेंगे कि a is any positive integer 5q plus 3, और फिफ्थ में लिख देंगे a is equal to 5q plus 4। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी a is equal to 5q, या ये पॉसिबिलिटीज होगी, या ये पॉसिबिलिटी होगी, या ये पॉसिबिलिटी होगी, या ये पॉसिबिलिटीज होगी, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। देखिए क्या यही दे, वापस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये प्रूव करना। हाँ देखिए 5q और 5q प्लस 1 और 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4, और इस तरह से हम इसको प्रूव कर चुके हैं। व्हाट इज ए? ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से ही है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर आपको इस 7 पे मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, द क्वेश्चन सेज शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। यहाँ पे odd integer की बात हो रही है। तो पहले तो हम टोटल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं। अगर डिवाइजर हमारा 6 हो तो हमने लिखा यहाँ पे कैसे सोल्यूशन होगा, लेट a be a positive integer and b means divisor is 6, therefore by Euclid's division lemma we can write a is equal to 6q plus r, and possible remainders will be, when 6 is divided then possible remainders will be 0, 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए तो हमारे पास 6 पॉसिबल रिमाइंडर्स आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हुई, देयरफॉर वी कैन से ओनली 6 पॉसिबिलिटीज अराइज। कौन सी? नंबर 1, इफ रिमाइंडर इज 0, नंबर 2 if remainder is 1, number 3 if remainder is 2, number 4 if remainder is 3, number 5 if remainder is 4 and number 6 if remainder is 5। yes, 6 पॉसिबिलिटीज हमारे पास मिल गई है, क्योंकि हमारे पास 6 ही रिमाइंडर थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में डालते हैं, मींस डिवीजन इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो यह आ गया दैट इज 6q+1, तो दैट इज 6 इंटू क्यू सम इंटीजर। क्या मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3q विच इज E1, क्योंकि कोई भी नंबर जो 3q से, कोई भी इंटीजर जो 2 से मल्टीप्लाई होता है वो E1 होता है। देखिए सेकंड केस में मैं लिख दूंगा यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q+1। देखिए 6q हमारा E1 है और E1 में 1 ऐड करेंगे तो हम कहेंगे विच इज थर्ड। देखिए a is equal to 6q, remainder is 2, I can take 2 as common, 3q+1, कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होता है वो E1 होता है, तो we can say which is E1। यहाँ पे देखेंगे रिमाइंडर हमारा 3 है, a is equal to 6q+3, 6q हमारा E1 नंबर है, E1 में ओड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओड ही होगा, we can say which is ओड। देखिए अब हमने लिया जब रिमाइंडर इज 4 तो वी कैन राइट 6q+4, 2 कॉमन, 3q+2, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ विच इज E1। और लास्ट में a इज इक्वल टू 6q+5, 6q E1 है, 5 ओड है, तो E1 प्लस ओड होता है हमारा विच इज ओड। ऐसे करने के बाद देखते हैं, देखिए एक तो हमारा ये ओड है, फिर हमारा ये ओड है और हमारा ये ओड है। अगर ओड के बारे में बात करूं तो एक तो हमारे देयरफॉर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है हमारी 6q+1, ये है 6q+3 और ये लास्ट है 6q+5। यहाँ पे क्यू क्या है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स एंड दिस इज राइट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी क्वेश्चन आपकी बुक से है, बुक से ये एक एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन है रियल नंबर से, और पेज नंबर 7 पे एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट हियर इट इज square of any positive integer. It is not only odd integer or even integer. It is square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m. तो देखिए लेट वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, लेट a be a positive integer and the divisor be taken as 3. Therefore, by Euclid division lemma, we can say that a is equal to 3q+r, and possible remainders will be, when divisor is 3, so possible remainders will be 0 or 1 or 2. Therefore, only 3 possible remainders are there, so we can write here, therefore only 3 possibilities arise, 3 ही possibilities उत्पन्न होती है। नंबर 1, when remainder is 0, second possibility if remainder is 1, and third possibility if remainder is 2, right। फॉर्म में लिखेंगे, we can write dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, so we can write here 3q because remainder is 0, so we can write
3q। और यहाँ पे इनको ये सेकंड में हम लिखेंगे, वी कैन राइट a is equal to 3q plus 1 because remainder is 1, और थर्ड में वी कैन राइट a is equal to 3q plus 2 because 2 is the remainder, here in the second 1 is remainder, in first only 0 is remainder। लेकिन ये तो हमारी बात हुई पॉजिटिव इंटीजर की, लेकिन ये पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। We can write here, we can write a whole square is equal to 3q whole square. 3q whole square, further we can write 9q square. Can we take here 3 common? We can write 3 into 3q square। अब देखिए हमारे पास q इंटीजर है, इस इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3q स्क्वायर से, ये भी इंटीजर होगा। तो वी कैन से 3 into m where 3q square is m, that is some इंटीजर। देखिए यहाँ पे ये q ओरिजिनली हमारा इंटीजर q था, उस इंटीजर को 3q स्क्वायर को हमने यहाँ पे एज m सपोज कर लिया है, और जैसे ही हमने m सपोज कर लिया, इन प्लेस ऑफ 3q स्क्वायर वी कैन राइट m। सो दिस इज द फॉर्म इज 3 into any इंटीजर, राइट। सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। वी कैन राइट a होल स्क्वायर is equal to 3q plus 1 whole square, क्योंकि हमें पूछा है द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, नॉट ओनली द पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर पूछा। देखिए तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन फर्स्ट टू में मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये 3q स्क्वायर प्लस 2q भी कोई इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर आल्सो। सो वी कैन राइट हियर 3m प्लस 1, वेयर हम m किसकी जगह लिखा, हमने लिखा 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, m मीन्स सम इंटीजर, राइट। अब थर्ड में भी हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग दिस साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे दैट इज 9q स्क्वायर एंड 12q प्लस 4। ये फर्स्ट टू में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, वी कैन राइट 3q स्क्वायर प्लस 4q। यहाँ का देखिए, और यहाँ मैं इसको 1 करके, और क्या मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज इस 4 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1 हियर। तो हमने इस 4 की जगह 3 प्लस 1 लिखा, 3 into 1 3, और दैट 1 is extra। So can this again is an integer, means 3q square plus 4q plus 1 is also an integer, so we can write 3m plus 1 where 3q square plus 4q is equal to 1m some इंटीजर। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर में 3 फॉर्म आ चुकी है, 1 is 3m, second is 3m plus 1, and third is also 3m plus 1। So yes, we can write, yes, therefore square of any positive integer is of the form 3m, this is 3m, this is और 3m plus 1, this is 3m plus 1, लेकिन दोनों ये भी 3m plus 1 और ये भी 3m plus 1 है, तो एक बार ही इसको लिखते हैं, and hence proved। इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है, we can write here। Okay, now we move on to the next question, and next question is the example of your book, and it is very simple।
We read the question. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 4m or 4m plus 1 for some integer m. पहले वाला जैसे इक्वेशन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे a b any पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे हमें डिवाइजर लेना चाहिए 4 and the divisor which is b, that is 4. Therefore, by Euclid's division lemma, we can write a is equal to 4q plus r. Means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. What will be the remainder now? When the divisor is 4, we can say possible remainders are 0 or 1 or 2 or 3. Only these are the possible remainders. So how many cases arise now here? So therefore only 4 cases or possibilities arise. Number 1, if remainder is 0. Number 2, if remainder is 1. Number 3, if remainder is 2. And number 4, if remainder is 3. लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं, हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना, हमें लेना है स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें दोनों तरफ उनका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर वी कैन राइट a is equal to 4q, a is equal to 4q plus 1, a is equal to 4q plus 2 and a is equal to 4q plus 3. राइट, देखिएगा again squaring this, we can say squaring means 4q whole square. 4q whole square means 16q square. Can we take 4 common here? 4q square. Here this 4q square is some integers. We can write 4m where 4q square is 1. This is some integer. Now we come to the second, taking squaring both sides. 4q plus 1 whole square, that is 16q square plus 8q plus 1. इनमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं. We can write 4q square plus 2q plus 1. ये जो पोर्शन है again some integer. In place of this we can write m where 4q square plus 2q is equal to m. M is some integer. Yes. अब now we come to the third case, third possibilities. And third possibilities में हम देखेंगे, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा a होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर, राइट हैंड साइड होल स्क्वायर, 4q plus 2 होल स्क्वायर. देखिए we can write 16q square, that is 16q plus 4. Can we take 4 common? सब में 4 common आ सकता है, right? We can write 4q square plus 4q plus 1. Again we can say that is 4m because we can write this is some integer. नीचे आप लिख दीजिएगा where 4q square plus 4q plus 1 is equal to m. And what is m? Some integer. ये फोर्थ पार्ट हम इसका थोड़ा नीचे लेंगे, that is fourth part is a is equal to 4q plus 3. We are taking here the fourth possibility is a is equal to 4q plus 3. देखिए ये रहा a is equal to 4q plus 3. यहाँ से yes, squaring both side
Further we can write taking square both sides, right hand side also squaring. Further we can write that is 16q square and 24q plus 9. Again we can write 16q square plus 24q. कैन भी इसके दो टुकड़े कर सकते हैं 9 के, 8 प्लस 1. 8 हमने इसलिए किया कि 8 में आप 2 कॉमन आ जाएगा. देखिए इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं. देन वी कैन राइट 4q square plus 6q plus 2 plus 1. This is some integer again. So we can write 4m plus 1. And what is m here? Where 4q square plus 6q plus 2 is m. m means some integer. अब देखिए हम जो स्क्वायर है उसकी फॉर्म देखते हैं क्या है. देखिए 1 है 4m, अदर इज 4m plus 1, 4m और 4m plus 1. तो दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनी है. देयरफॉर वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form 4m sorry, or 4m plus 1 for some integer m, and hence proved. फिर से देखते हैं हम. ये रहा 4m और 4m plus 1 कहाँ था. देखिए ये रहा 4m plus 1, ये सेकंड में ये अपना था 4m, ये 4m plus 1, ये भी हमारा 4m. तो या तो है 4 टाइम्स ऑफ m है या 4 टाइम्स ऑफ m plus 1 है. यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही पॉसिबिलिटीज रिपीट हो रही है. 4m यहाँ भी है, 4m यहाँ भी है, इसलिए हमने इसको केवल एक ही बार लिखा है. एंड हेंस प्रूव्ड. और ये रहा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है. यहाँ भी स्क्वायर है. हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m plus 1. ध्यान रखिए मैक्सिमम टाइम में जनरली अगर ये 2 है, यहाँ पे 2m है, तो हम डिवाइजर भी 2 ही लेते हैं जनरली, बट नॉट ऑलवेज. देखिएगा यहाँ पे लिया हमने लेट a be a positive integer and the divisor b is equal to 2. Therefore, by Euclid's division lemma, we can write a is equal to 2q plus r. How many possibilities are there? How many remainders are there when divisor is 2? Or there are only either the 0 is remainder or 1 is remainder. When divisor is 2, then the divisor is 2, then possible remainders are 0 and 0 or 1 only. So therefore, only two possibilities arise. नंबर 1 आप जान गए होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन कर लिया है. if remainder is 1 and possibility 2 if remainder is 1 and here remainder is 0. देखिए अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2q, और अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम लिखेंगे a is equal to 2q plus 1. राइट. अब क्योंकि हमें स्क्वायरिंग करना है, क्वेश्चन में स्क्वायरिंग पूछा है, देन फर्दर वी कैन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड. a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. 2q स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन राइट हियर 4q स्क्वायर. 4q स्क्वायर में मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 2q स्क्वायर. ये कोई ना कोई इंटीजर है तो लिख देंगे हम 2m, लेकिन नीचे लिखेंगे वेयर 2q स्क्वायर इज m. व्हाट इज m? सम इंटीजर. 4 के सेकंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q plus 1 होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग करेंगे, दिस इज 4q
प्लस 4q प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन है, हमने लिखा 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये कोई न कोई इंटीजर है, बहुत सारी क्वेश्चन कर चुके हैं। वी कैन राइट 2m प्लस 1, लेकिन लिखना हमें पड़ेगा वेयर 2q स्क्वायर प्लस 2q इज m, मीन्स कोई ना कोई ये इंटीजर है, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन ये था that we can write in the form 2m or 2m plus 1 for some integer, hence proved। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज आज का है। ये क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 5 का है, एनसीईआरटी से हमने लिया है, पेज नंबर 7 पे आपको मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है, यहाँ पे है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए अगर यहाँ पे हम डिवाइजर 9 लेते हैं तो हमारे पास 9 केसेस अराइज होंगे, 9 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, पर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये इससे भी हो सकता है अगर हम लिया कि लेट ए बी ए पॉजिटिव integer and b means divisor we are taking here 3. Therefore, by Euclid division lemma we can write 3q plus r। देखिए यहाँ पे डिवाइजर 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए 0, 1 और 2। तो हमारे पास therefore we can write here only 3 possibilities arise according to the remainders. Number 1, if remainder is 0. Number 2, if remainder is 1. Number 3, if remainder is 2. वन बाय वन हम इनका क्यूब लेंगे और उनको फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, so we can write therefore this can be written as a can be written as 3q, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है और हमें लेना है इसका क्यूब, तो टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, और वी कैन राइट इसका भी क्यूब लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी क्यूब लीजिए और आप राइट हैंड साइड भी क्यूब लीजिए। राइट हैंड साइड इसका हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, और यहाँ पे मैं 9 कॉमन लेता हूँ, 9 कॉमन लेने से हमारा हो जाएगा 3q क्यूब, और आप देखेंगे ये कोई ना कोई इंटीजर है तो हम लिख देंगे 9m, वेयर 3 क्यूब इज m means some integer. We are taking now this case second, what it is, a is equal to, if remainder is 1 then we can write a is equal to 3q plus 1, right? So we can write here a is equal to 3q plus 1, लेकिन क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ, a क्यूब, और यहाँ भी हमें लेना पड़ेगा 3q plus 1 क्यूब। हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b क्यूब का, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है, राइट। देखिए इसको, सो वी कैन राइट 3q plus 3q whole square into 1 plus 3 into 3q into 1 plus 1 whole cube, ये हो जाएगा हमारे पास 27q, that is also 27q square, that is 9q plus 1। इनमें देखेंगे फर्स्ट रे में 9 can be common, so we can write
take 9 as common, so it is 3q plus 3q square plus that is q plus 1। तो ये जो है ये कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर है, राइट। तो हम लिख देंगे दैट इज 9m plus 1 वेयर 3q plus 3 square plus q is equal to m सम इंटीजर। देखिए इसको एक बार वापस हम चेक कर लेते हैं हमने फॉर्मूला ठीक यूज किया कि नहीं। 3 cube that is 27 cube, then 3 and 3q is whole square into 3 is 9, 3 is 27 cube square 3 and that is 3 is a 9 cube, that is common 9 common cube, that is it is correct। ओके, अब हम थर्ड पॉसिबिलिटीज पे आते हैं। जब हमारे पास ये जो थर्ड पॉसिबिलिटीज बनेगी ये बनेगी a इक्वल टू 3q प्लस 2। देखिए थर्ड पॉसिबिलिटी हमने लिखी है यहाँ पे, देखिए a is 3q plus 2, राइट। हमें दोनों तरफ ही क्यूब करना है, a क्यूब is equal to 3q plus 2 whole cube, sorry it is whole cube, राइट। वही आइडेंटिटी यूज करनी है a plus b होल क्यूब की, तो 3q होल क्यूब प्लस 3 into 3q square into 2 plus 3 into 3q into 2 whole square plus 2q। ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27q। ये हमारे पास आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 70 54 q स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा 4 3 जा 36 q, और ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे देखिए हम फिर से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इट इज 9 दैट इज 3q और दैट इज 6q स्क्वायर एंड दैट इज 4q प्लस 8। ये कोई ना कोई इंटीजर है तो हम लिख देंगे दैट इज 9m प्लस 8 वेयर वी हैव टू राइट वेयर 3q plus 6q square plus 4q is m, which is some इंटीजर। तो देखिए जब हम क्यूब करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ रही है, 9m plus 1 नंबर 1, that is 9m plus 1 and this is 9m plus 8, सॉरी 9m plus 8 है, ये 9m plus 1 है और फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है 9m। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी यही है कि या तो ये 9m आना चाहिए या 9m plus 1 आना चाहिए या 9m plus 8 आना चाहिए। तो इस तरह से प्रूव हो गया। हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे therefore cube of a positive integer is of the form first 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 and hence proved। आगे भी आपको ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कीप वॉचिंग प्लीज। थैंक यू एंड कमेंट्स। ओके।